So for any chemical reaction, the change is defined as product minus reactant. So enthalpy of product, enthalpy of reactant, internal energy of product minus reactant, PV of product minus PV of reactant. अब हम PV की बात करें, so nRT ideal gas के लिए हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, and for liquid and solid we can ignore pressure into volume. Solid और liquid का जो वॉल्यूम है गैसेस के कंपैरिजन में बहुत कम होता है, उसे इग्नोर कर देते हैं. nRT of product minus nRT of the reactant. Yeah, generally chemical reactions जब perform होता है, products and reactants both are present in the same vessel. If they are present in the same vessel, the temperature of the vessel is same, product का भी temperature same, reactant का भी temperature same. ROT constant होते हैं, moles of gases in the product minus moles of the gases in the reactant, ये हो जाएगा delta Ng, RT same होगा. और delta Ng हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है chemical equilibrium में. Moles of gases, coefficient of gases product minus moles of coefficient of gases reactant, coefficient of gases product minus coefficient of gases reactant. Is that okay? तो हमारे पास रिलेशन आ जाता है डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT. नाउ ट्राई क्वेश्चन 7. नाउ अभी ट्राई करके बताओ 7th क्वेश्चन. Delta, if sublimation of a solid at 1 atm, which of the following may be correct? Sublimation of solid is giving gases. ये कुछ sublimation reaction है. Delta U equal to delta H minus delta NgRT. So delta H, delta Ng, moles of gas 1, moles of solid यहाँ पे gas नहीं है, तो delta Ng हो गया 1 RT. ये delta U का वैल्यू आ गया. अब ये तो डेफिनेट है, सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए हीट सप्लाई करनी होगी. इफ वी आर सप्लाइंग हीट, देन डेफिनेटली हीट विल बी पॉजिटिव फॉर द सिस्टम. तो Q विल बी पॉजिटिव. B ऑप्शन इज करेक्ट. डेल्टा H इज पॉजिटिव. D ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट. क्यों करेक्ट होगा D ऑप्शन? क्योंकि इंथैल्पी चेंज एंड हीट एनर्जी एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर आर सेम, और हमें कांस्टेंट प्रेशर दे रखा है 1 atm. हमें कांस्टेंट प्रेशर दे रखा है, तो बी और डी दोनों सेम है, दोनों ग्रेटर देन 0. अब डेल्टा यू पे आते हैं. यदि टेम्परेचर ज्यादा है, इसका अपना फिक्स वैल्यू है. इफ टेम्परेचर इज मोर, डेल्टा यू इज नेगेटिव. इफ टेम्परेचर इज लेस, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव आ जाएगा. हाई टेम्परेचर पे नेगेटिव, लो टेम्परेचर पे पॉजिटिव. तो लो टेम्परेचर पे बोल रखा है पॉजिटिव. ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट. इज दैट ओके? 7th क्वेश्चन. यस सर. Yes, sir, clear. इसे लेक्चर नोट्स में लिखना था ना, थ्योरी था, केमिकल रिएक्शन पे बेस्ड है. सर किसी भी ऐसा केमिकल इक्वेशन रहेगा तो हम इसी यानी इसी मेथड से अप्रोच करना पड़ेगा क्या? यानी डेफिनेटली केमिकल रिएक्शन है. इफ यू वांट टू रिलेट डेल्टा एच एंड डेल्टा यू, तो यही प्रोसेस होता है. चलो हम आगे. Sixth question. An ideal gas undergoes adiabatic expansion against constant external pressure.
Which of the following is correct? Constant external pressure के against expansion है, adiabatic expansion है, irreversible process है, हमें incorrect बताना है. Temperature of the system decreases. देखते हैं temperature का क्या होगा. First law of thermodynamics, जहां पे भी irreversible आ गया, first picture दिमाग में आनी चाहिए FLOT, first law of thermodynamics. Exercise 2 part 3, sixth question. Q plus W equal to delta E. Q 0 adiabatic process है, expansion है, work negative, यदि work negative तो delta E negative, delta T negative, temperature is decreasing. A option is correct. हमें incorrect बताना है, यहाँ पे temperature कम होगा क्योंकि work negative आ रहा है. Second, the relation P to the power gamma constant will be valid. No, this relation won't be valid. ये सिर्फ valid है reversible adiabatic के लिए. यहाँ पे तो irreversible adiabatic expansion against constant external pressure will be irreversible. B option correct आ रहा है, which is incorrect statement. C, delta E plus P external delta V 0. Delta E plus P delta V, इसको हम ले सकते हैं minus P external delta V. So C is correct, which is not right answer. तुम इसको minus P external delta V लिखो, इधर लेके चले जाओ. C option सही है, जो आंसर सही मतलब करेक्ट आंसर नहीं है, हमें इनकरेक्ट बताना है. Enthalpy of the gas remains unchanged. No, temperature is changing. यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, डेल्टा ई चेंज हो रहा है, enthalpy will change. So option B and option D are the incorrect statement. Right answer. Is that okay? Yes, sir. सिक्स के बाद क्वेश्चन था फिफ्थ. सर 2B. अरे तो मैं नीचे से जा रहा हूँ ना. फिफ्थ क्वेश्चन, PV plot for two gases during adiabatic process are given in the figure. ये तो क्वेश्चन क्लास में किया है हमने, याद है? मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, गामा का कंपैरिजन. यस सर, पार्ट 1 सर में. उसमें वो लीनियर और नॉन लीनियर का कांसेप्ट है. हाँ सर, सी. हाँ, तो CO2 का जो गामा होगा वो ज्यादा होगा SO3 से. उसका गामा होता है CO2 का, लीनियर पॉलीएटॉमिक है तो इसका गामा होता है 7/5, while SO3 गामा is 4/3. यस सर. तो जिसका गामा ज्यादा वो B, जिसका गामा कम वो A. हो जाएगा पार्थ? यस सर. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3. In an isothermal expansion of a gaseous sample, the correct relation with sign according to new IPSC convention, the reversible and irreversible process are carried out between the initial and final state. Expansion बोल रखा है, isothermal expansion. वर्क का तो मैं कंपैरिजन नहीं बता रहा हूँ, ऑलरेडी लेक्चर नोट्स में लिखा हुआ है. क्लियर? एक्सपांशन है, वर्क इज डन बाय द सिस्टम. तो रिवर्सिबल का वर्क का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, बट बोथ आर नेगेटिव, सो रिवर्सिबल वर्क इज लेस देन इरिवर्सिबल. बी ऑप्शन आएगा, लेक्चर नोट्स में लिखा हुआ है ना, ग्राफ पूरा ड्रॉ किया था. दोनों नेगेटिव है, बट इरिवर्सिबल का जो वर्क है कम नेगेटिव है, इसलिए एब्सोल्यूट वैल्यू इसका ज्यादा होगा. लेट्स से इरिवर्सिबल -3 है और रिवर्सिबल -5. -3 इज ग्रेटर देन -5. अब आते हैं हम Q पर. तो डेल्टा ई तो 0 होगा. डी ऑप्शन करेक्ट. डेल्टा ई रिवर्सिबल, डेल्टा ई रिवर्सिबल, बोथ आर 0. या आइसोथर्मल प्रोसेस दे रखा है क्योंकि. अब Q रिवर्सिबल, यहाँ पे Q होता है माइनस ऑफ W. जिसका W ज्यादा उसका Q कम, माइनस साइन का डिफरेंस. तो Q irreversible is less than Q reversible and C option is not correct. नहीं, हाँ, C ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, इसका B और D ऑप्शन होंगे. क्या दे रखा है थर्ड का आंसर? BD. वही है सर. ठीक है. नयन थर्ड. क्वेश्चन नंबर 1 इंफॉर्मेशन बेस्ड है, अभी के लिए तो याद कर लो. कुछ ऐसा लगता है कि इस ऑप्शन में डाउट है तो वो क्लियर करो नयन.
कौन सा बताओ, इंटेंसिव एक्सटेंसिव? सर कलर। कलर, कलर क्या लगता है, इंटेंसिव है एक्सटेंसिव है? कौन से कलर का है? रेड। अभी, रेड। अभी रेड है सर। समझ में आया? यस सर। चलो पार्ट 4 डाउट, सेकंड भी डाउट है? हाँ सर। स्टेटमेंट सार्थक, सेकंड कौन सी। सा स्टेटमेंट एक्सप्लेन करना है? चूज द करेक्ट वन। In reversible process, energy change in each step can be reversed. हाँ, energy change in, yes, because equilibrium is maintained. Correct statement है. In reversible process, energy change in each step can be reversed because the process is reversible. Equilibrium is maintained. हम same path को reverse direction में follow कर सकते हैं. Not necessary कर रहे हो, but कर सकते हैं. Is that okay? हाँ सर। रिवर्सिबल का डेफिनेशन है कि हम पाथ को रिवर्स कर सकते हैं, एनर्जी को रिवर्स कर सकते हैं। चलो पार्ट 4 इन डाउट, इज देयर एनी डाउट इन पार्ट 4? थर्ड। थर्ड, यस सर। ईडी माइनस ईए 40 दे रखा है थर्ड में, ईडी माइनस ईए, ठीक है। द हीट एब्सॉर्ब इन द प्रोसेस एडी एंड डीबी when a system is taken from state A to B along path ACB as shown in the figure, 80 joule of heat is flow into the system and system does 30 joule of work. इसका सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, और भी कोई डाउट है इस पैसेज का? सेकंड। फर्स्ट। 2 3 भी डाउट है, मतलब वो ऑलमोस्ट सारी बताने हैं। फिर पार्ट 4 हम ऐसे भी पाथ के अलॉन्ग गए, shown in the figure, 80 joule of heat flows into the system. QACB is 80 joule. System does a work of 30 joule. System ने वर्क किया तो -30 डेल्टा E from A to B आ जाएगा, Q plus W 50 joule. ये पाथ फंक्शन है, ये पाथ फंक्शन है, बट ये स्टेट फंक्शन है, वैलिड फॉर ऑल द पाथ। तुम ACB से जाओ, AB डायरेक्ट जाओ, या ADB जाओ, किसी पाथ से जाओ, 3 पाथ दे रखे हो। तुमने डेल्टा E निकाल लिया सबसे पहले AB का। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच हीट फ्लोज इनटू द सिस्टम अलोंग पाथ ADB? द वर्क डन बाय द सिस्टम इज 10 जूल, तो डेल्टा E 50 जूल। हमें हीट बताना है फर्स्ट पार्ट में, वर्क डन बाय द सिस्टम इज -10, तो वर्क डन -10 कर दो, बाय द सिस्टम दे रखा है, Q आ गया +60, फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट, when the system is returned from state B to A along the curve path, the work done on the system is 20 joule. Does the system absorb or liberate heat, and by how much? First law of thermodynamics, delta E equal to Q plus W. Delta E हर पाथ का सेम होगा, स्टेट फंक्शन है 50। हीट एक्सचेंज कैलकुलेट करना है, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज 20 जूल, ऑन द सिस्टम 20 दे रखा है, तो Q आ गया, when a system returned from B to A along the curve path, the work done on the system is 20 joule. Does the system absorb liberate heat by how much? तो ये 50, work done on the system is 20 joule. अच्छा ये -50 होगा, मैंने ये गलत लिखा है, A to B plus 50A, हम B to A जा रहे हैं, so this should be -50, Q आ गया -70. Option A. Is that okay? Second question. Clear. हाँ, आवाज अटक रहा है, वीडियो इज नॉट क्लियर।
मेरी आवाज अभी आ रही है? यस यस सर, आ Yes, रही है। sir. Question number 3. ED minus EA is 40. The heat absorbed in the process ED minus EA दे रखा है 40. हमें ED minus EB minus ED कैलकुलेट करना है. तो इन दोनों को ऐड करेंगे, ये आना चाहिए 50. तो ये हो जाएगा 10 जूल. हीट एब्जॉर्ब इन द प्रोसेस AD. AD में हीट एब्जॉर्ब Q डेल्टा E वर्क डन. हमें ED माइनस ये दे रखा है, EB माइनस ED आ जाएगा. AD और DB में, AD से और DB में हमें कैलकुलेट करना है हीट एब्जॉर्ब. टोटल हीट एब्जॉर्ब हमारे पास आ जाएगा Q प्लस W इक्वल टू डेल्टा E. सर डीबी में वॉल्यूम कांस्टेंट है, वर्क 0. क्या? वर्क सर डन बाय D2B डीबी. वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क उसमें 0 होगा. DB में तो वर्क 0 आ जाएगा. Work from D2B is 0, so Q plus W from D2B is delta E. Delta E DB का हमने कैलकुलेट किया 10. वर्क 0 तो Q आ जाएगा 10 D2B. तो D2B 10 जूल. D ऑप्शन मैच कर रहा है. हम A to D भी कैलकुलेट कर लेते हैं, A से लेकर D तक. चलो, यदि हम टोटल Q प्लस W देखेंगे तो टोटल इंटरनल एनर्जी चेंज 50. टोटल Q फ्रॉम A to D, Q फ्रॉम D to B, ये टोटल हीट एक्सचेंज. अब वर्क डन हमें नहीं पता है ना इसका, A से D तक का. तो हमें कैलकुलेट करना है हीट एक्सचेंज फ्रॉम A to D. टोटल हीट एक्सचेंज, टोटल वर्क डन इक्वल टू डेल्टा E. ये वर्क 0, हीट एक्सचेंज आ गया. यहाँ पे डेल्टा E आ गया हमारा. यहाँ पे डेल्टा E पता है, हीट एक्सचेंज और वर्क एडिशन. Q A to D में ये भी पता है 40. सेकंड ऑप्शन, वैसे तो हम डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं. Q D भी आ गया 10 जूल, तो Q A D भी आ जाएगा. मतलब एक ही ऑप्शन मैच करेगा. बट स्टिल यदि इसका कैलकुलेशन यदि हम करने जाएंगे $50 जूल A से D तक.
A to D, Q A to D हो गया प्लस वर्क डन फ्रॉम A to D इक्वल टू डेल्टा E फ्रॉम A to D. AD का हमें डेल्टा E, हाँ बोलो. सर सिस्टम का वर्क डन 30 जूल है ना कहाँ से? सर वो पैराग्राफ में दिया है When a system taken from A to B state along path ACB as shown in the figure, 80 joule of heat is flowed into the system. System does work 30 joule. हाँ. Then उससे क्या होगा बोलो? हमें सर वो फॉर्मूला में basic- पुट करके आ जाएगा ना कौन से फॉर्मूले में? सर ये 50 इक्वल टू QAD प्लस QDB माइनस 30 इस नेटवर्क इशू पता नहीं क्या हुआ आज. सर वो 80 जूल और 30 जूल तो सिर्फ पाथ एसीबी के लिए वैलिड होंगे ना? तुम्हारी भी आवाज अटक रही है, मुझ तक आ नहीं रही है प्रॉपर. हाँ अब बोलो क्या बोल रहे हो? सर वो जो पैराग्राफ में 80 जूल और 30 जूल है वो तो सिर्फ पाथ एसीबी के लिए वैलिड होगा ना? हाँ एसबी के लिए. हमें एडी के लिए निकालना है ना. किसी का आया है एडी? इट मे बी पॉसिबल कि एक ऑप्शन देख के ही हमें टिक करना हो, ये भी हो सकता है. बट क्या किसी का एडी आया है? मुझे एकदम तो अभी क्लिक नहीं हो रहा कि एडी कहीं जाएगा, शायद कुछ एक इंफॉर्मेशन और रिक्वायर्ड होगी. व्हेन अ सिस्टम इज टेकन फ्रॉम ए टू बी थ्रू एसीबी पाथ 80 जूल ऑफ हीट इज फ्लोड इनटू द सिस्टम. ठीक है. अच्छा मैं दे तो रखा है, एक मिनट. फर्स्ट क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है उसके लिए. ओके, हाउ मच हीट फ्लो इनटू द सिस्टम अलोंग पाथ एडीबी if work done by the system is 10 joule. एडीबी पाथ में टोटल वर्क डन दे रखा है हमें. So work done through ADB is given in the first question. 10 joule दे रखा है हमें. फर्स्ट क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उसका यूज करना है. ठीक है. अब हमें निकालना था हीट एक्सचेंज टू एडी एंड डीबी. तो एडी और डीबी ये वाला तो हमने सॉल्व किया है. डीबी का हीट एक्सचेंज है 10 जूल. क्लियर. अब डीबी का हीट एक्सचेंज 10 जूल, वर्क डन 0 और डेल्टा ई हमें पता है 40 जूल डीबी का, सॉरी 10 जूल डीबी का. तो डीबी के लिए हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन आ गई. टोटल वर्क डन इज 10 जूल फ्रॉम ए डी टू बी. तो ये वाला वर्क डन आ जाएगा 10 क्योंकि इस तरह वर्क 0 है. इज इट ओके? अब हीट एक्सचेंज चाहिए तो यहां से यहाँ पे फर्स्ट लॉ लगा दो एडी पर. फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स डेल्टा ई 40 जूल इक्वल टू वर्क डन. वर्क डन आ रहा है 10 जूल प्लस क्यू. यहाँ पर सर वो 10 माइनस में होगा. 10 माइनस में होगा. क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम दे रखा है ना वो फर्स्ट क्वेश्चन में, इसलिए -10 होगा. इज दैट ओके? फर्स्ट क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन है उसका यूज आया है. चलो एक्सरसाइज 3 पर चले. एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 डाउट. Question 3, exercise 3, part 1. Among the following intensive property, अभी के लिए याद रख लो, intensive property इसमें से कौन सी है बाद में पता लगेगा.
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4, ये अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। जस्ट रीड द क्वेश्चन, मैं सॉल्व कर रहा हूं बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 4, one mole of an ideal gas is taken from A to B along two paths denoted by solid and dashed line as shown in the graph. If the work done along the solid line path is WS and that of along dotted line path is WD, then the integer closest to the WD upon WS. चलो मतलब हमें उसमें जो सॉलिड लाइन है और डैश लाइन है उसका रेशो निकालना है। सॉलिड लाइन पे जो वर्क है वो WS और डैश लाइन पे जो वर्क है WD। बी ए, सबसे पहले ये चेक करो क्या AB वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस है? Are we getting same pressure into volume on all the paths, curved path जो solid line है उसके along? क्या same pressure into volume आ रहा है? हाँ सर। Code into 0.52, 5.5 मतलब तुम चेक कर सकते हो ना रफली, वो ग्राफ से ही चेक करना था हमें। हर पॉइंट पे प्रोडक्ट 2 आ रहा है। 2 into 1, 1 into 2, at each and every point we are getting product 2, pressure into volume मतलब एक आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। सर पॉइंट बी पे नहीं आ रहा ना? आ रहा है 5.5, वो 0.5 के नीचे है तो हमें कैसे पता चलेगा कितना है वो? ये वाला पॉइंट एग्जैक्टली मैच करेगा, जो ये वाला पॉइंट था ये मैच कर रहा है, नहीं ये वाला नहीं, यहाँ पे एक डॉट दे रखा है, ये डॉट के नीचे है 4 और तुम देखो डॉट के जस्ट इस साइड है 0.5, यहाँ पे 4 के नीचे 5.5, तो ये 5.5 के नीचे आ रहा है। तो सबसे पहले तो हमें ये प्रेडिक्ट करना था कि एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। अब यहां से यहां तक का जो वर्क है, दिस एरिया अंडर द कर्व प्लस दिस एरिया अंडर द कर्व प्लस दिस एरिया अंडर द कर्व, 3 पार्ट में से सॉल्व करना है। पहला P कांस्टेंट 4 atm, जो डैश लाइन की बात कर रहा हूं मैं ना, डैश लाइन में 4 atm इंटू चेंज इन वॉल्यूम 0.5 लीटर से 2 लीटर। तो यहां से यहां तक का वर्क मैं इसको चलो कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C बोल देता हूँ। वर्क डन फ्रॉम स्मॉल a टू कैपिटल A, प्रेशर माइनस P एक्सटर्नल 4 atm, चेंज इन वॉल्यूम 1.5 लीटर। सिमिलरली तुम यहां से इस पॉइंट का निकालोगे फ्रॉम A टू B, कैपिटल A टू B, ये वर्क 0, इतना वर्क आ जाएगा, ये वाला एरिया। प्रेशर इनटू विड्थ, प्रेशर इनटू विड्थ हो जाएगा ये क्वेश्चन। इसमें आया डैश लाइन का, सॉलिड लाइन का जो वर्क है वो आइसोथर्मल 2.303 nRT ln V1/V2। यस सर। क्या कर पाओगे फोर्थ क्वेश्चन अभी? हाँ सर। यस सर। वो 3 स्टेज एक्सपांशन है। पहले हमने प्रेशर को रखा इनिशियली, जब एक्सपैंड कर रहे हैं तो हम बेसिकली 4 atm से आए नीचे, 1 atm पे, 1 atm से आए 0.5 पर, 0.5 से अगेन फर्दर नीचे आ गए। तो बजाय सिंगल स्टेज के हम 3 स्टेज एक्सपांशन में जा रहे हैं। सर ये लास्ट वाला फिर से बताइए। अभी उसको छोड़ दो, वो एक और क्वेश्चन आएगा, मतलब इसमें मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इसमें कर्व ऊपर दे रखा है। वेट फॉर दिस, जो भी मैंने लास्ट में बोला उसको मैं बाद में भी एक्सप्लेन करूंगा।
आफ्टर क्वेश्चन नंबर 4 3 हुआ, 4 हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 के सी ऑप्शन में डाउट है। वर्क इज नेगेटिव इन बोथ द केस, दोनों केस में वर्क नेगेटिव है। आइसोथर्मल में ज्यादा नेगेटिव, एडियाबेटिक में कम नेगेटिव। So W adiabatic is greater than W isothermal. C option is incorrect. यदि हम एब्सोल्यूट टर्म में जाएंगे, पार्ट नहीं, किसने पूछा है? अथर्व ने। यस सर। शायद मुझे ऐसा ध्यान है जेई में इसके दोनों आंसर सही दे रखे थे। सी टिक किया तो भी करेक्ट है, नहीं किया तो भी करेक्ट है, ऐसा कुछ था क्या? सर आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। तो इसका सही मतलब ये स्टेटमेंट वैसे हमारे हिसाब से इनकरेक्ट है। ओके सर। फिफ्थ के बाद क्वेश्चन था 7, 6 तो किसी का डाउट नहीं था ना। 7th question, an adiabatic gas expands from P1 V1 T1 to P2 V2 T2 under different conditions. The correct statement among the following: the work done by the gas is less when the expanded reversibly from V1 to V2 under adiabatic condition as compared to that of expanded reversibly from V1 to V2 under isothermal condition. 7th में कौन सा ऑप्शन बताना है मुझे? Which option need to be discussed? B and C. A and C. B. 7 का A and C. A option, the work done by the gas is less when expanded reversibly. By the gas बोला है हमें from V1 to V2 under adiabatic condition. तो adiabatic condition पे आ गए। when expanded reversibly from V1 to V2 isothermal, तो isothermal ये हो गया। तो definitely isothermal का वर्क ज्यादा होगा by the gas, ये isothermal और ये नीचे वाला adiabatic। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। एक मिनट, we under adiabatic condition as compared to the work done by the gas is less, सही स्टेटमेंट है। ये एडियाबेटिक का वर्क है और ऊपर वाला आइसोथर्मल का वर्क है। तो दोनों ही वर्क नेगेटिव, बट हमें क्वेश्चन में बोला ही गया है वर्क डन बाय द केस, तो हमें नेगेटिव साइन के साथ ही रिपोर्ट करना है ना, जो ज्यादा नेगेटिव वो ज्यादा होगा। तो सेकंड भी बताना है, बी ऑप्शन। क्या? बी ऑप्शन भी बताना है। बी ऑप्शन, the change in internal energy of the gas is 0 if it is expanded reversibly with T1 equal to T2, ठीक है, ये तो करेक्ट है। and positive if expanded reversibly under adiabatic condition। हाँ, चेंज इन इंटर देखो, यदि Q प्लस W डेल्टा, ये एडियाबेटिक कंडीशन दे रखा है, Q 0, वर्क नेगेटिव, तो डेल्टा E नेगेटिव, चेंज इन टेम्परेचर डेफिनेटली विल नॉट बी सेम। तो पॉजिटिव इफ एक्सपेंडेड रिवर्सिबली, एक्सपांशन है वर्क नेगेटिव, दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। बी ऑप्शन का सेकंड पार्ट गलत दे रखा है, पॉजिटिव दे रखा है, इट शुड बी नेगेटिव। क्या इतना क्लियर है? यस सर। हाँ सर। क्या 7 का सी भी बताना है? हो गया 7 कंप्लीट। 8th क्वेश्चन, a reversible cyclic process for an ideal gas is shown below here। कुछ एबीसी में दे रखा है। Here P, V and T are pressure, volume and temperature। thermodynamic parameter Q, W, H, U are, ठीक है। The correct option वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ है।
चलो हम ट्राई करते हैं इस ग्राफ को पीवी ग्राफ में कन्वर्ट करने का, ताकि पीवी ग्राफ को हम ज्यादा अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ए से बी पर टेम्परेचर कांस्टेंट, ए टू बी टेम्परेचर कांस्टेंट, वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग फ्रॉम ए टू बी, तो ये ए रहा होगा और ये बी ये रहा होगा, लेस वॉल्यूम। क्लियर? फर्स्ट वी आर ट्राइंग टू ड्रॉ पीवी ग्राफ फ्रॉम दिस वीटी ग्राफ। ए से बी पर वॉल्यूम कम हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट आइसोथर्मल का ग्राफ, ए बी वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग। बी से सी पर वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब प्रेशर कांस्टेंट रहा होगा, बी से सी प्रेशर कांस्टेंट। सी से ए पर वॉल्यूम कांस्टेंट, तो सी से ए पर वॉल्यूम कांस्टेंट। कुछ ये ग्राफ रहा हो। क्लियर? सी पर P2 V1 T2, ए पर P1 V1 T1 और बी पर P2 V2 T1, P2 V2 T1। कौन सा ऑप्शन एक्सप्लेन करना है मुझे बता दो, 8 में सारे बताना है या कुछ 1 2 3 ऑप्शन? सर अप्रोच कैसे करना है सर, ऑप्शन चेक कैसे करना है वो नहीं समझ। अप्रोच को ऐसे करना है जैसा मैंने किया है, मतलब ऑप्शन पे जाने के पहले मैंने पीवी ग्राफ ड्रॉ किया है ताकि मैं उसे ज्यादा बेटर तरीके से इंटरप्रेट कर पाऊं। पीवी ग्राफ में हम अच्छे से समझ सकते हैं चीजें, इसमें थोड़ा सा कभी कभी कॉम्प्लिकेशन होता है, समझ तो इसमें भी सकते हैं। चलो फर्स्ट ऑप्शन देखो, QAC, Q हीट एक्सचेंज फ्रॉम A टू C, मतलब यहां से यहां, मैंने एरो बनाना ही नहीं था, ठीक है। तो A से C पे गए, जो हीट एक्सचेंज है दैट विल बी डेल्टा U। क्या A से C पे वर्क डन 0 है? यस। कांस्टेंट वॉल्यूम, वर्क 0, एरिया अंडर द ग्राफ इज 0, तो A से C पे जो हीट एक्सचेंज होगा वो इंटरनल एनर्जी चेंज के इक्वल। अच्छा BC दे रखा है वहां पे, रुक जाओ, QA to C is the internal energy change from B to C। हमें इंटरनल चेंज B से C का दे रखा है और ये Q पूछा है, चेक करना पड़ेगा। तो QAC इक्वल टू डेल्टा U BC। हीट एक्सचेंज फ्रॉम A to C, इंटरनल चेंज फ्रॉम B to C, ऐसा क्यों इन्होंने क्रॉस चेक करवाया है? इसका सेकंड ऑप्शन यदि हम देखें, वर्क डन फ्रॉम A to B is P2 V2 minus V1, तो ये तो गलत है। फर्स्ट वाला तो गलत है क्योंकि वर्क डन जो दे रखा है इन्होंने AB P2 V2 minus V1, अब P2 है ये वाला प्रेशर और V2 minus V1, V2 ये वाला वॉल्यूम, V1 ये वाला वॉल्यूम, मतलब वो ये बोल रहे हैं, जबकि A से B का वर्क डन होना चाहिए ये वाला। तो फर्स्ट इज नॉट करेक्ट, मुझे इसको चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं, ये गलत है क्योंकि ये थोड़ा सा क्रॉस है। वैसे भी मुझे चेक कर सकते हैं बट बहुत लेंदी हो जाएगा, फिर तो कुछ रिलेट करना पड़ेगा। सेकंड चेक किया, दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, हेंस A इज नॉट करेक्ट। हमें बोल रखा है ये वाला वर्क डन, मतलब वर्क डन फ्रॉम A to B इज P2 into V2 minus V1, मतलब P2 ये वाला प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम ये, तो ये मैच नहीं हो रहा है। सेकंड ऑप्शन पे जाते हैं हम, WBC WB2C, दिस इज P2 into V2 minus V1, ये मैच हो रहा है। फर्स्ट ऑप्शन बी का WBC is P2 V2 minus V1, होना तो ये चाहिए था माइनस P एक्सपोनेंट डेल्टा V, तो डेल्टा V होगा V1 minus V2, यहाँ पे V2 minus V1 दिया है, माइनस साइन को अंदर लेके चले गए। फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, मैच हो रहा है। सेकंड देखते हैं इसका QBC, QBC इक्वल टू डेल्टा HAC, हीट एक्सचेंज फ्रॉम B to C इज enthalpy चेंज फ्रॉम A to C। B से C का हीट एक्सचेंज कांस्टेंट प्रेशर पे, वो एंथैल्पी चेंज हम लिख सकते थे QB2C इज इक्वल टू डेल्टा HA2C, मतलब हमें ये दे रखा है बेसिकली डेल्टा HB2C कांस्टेंट प्रेशर है, इज डेल्टा HA2C। A से C का एंथैल्पी चेंज और B से C का एंथैल्पी चेंज सेम हो, कैसे पॉसिबल होगा?
ये तब पॉसिबल होगा जब यहाँ से यहाँ का एंथैल्पी चेंज जीरो हो। तो ये तो जीरो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक प्लस साइन होगा, एक माइनस साइन होगा, बी से सी, ए से सी। ये करेक्ट है, दिस इज करेक्ट। बी ऑप्शन चेक करना कैसे करेक्ट होगा ये। क्यों बी टू सी दे रखा है, हीट एक्सचेंज फ्रॉम बी टू सी, क्या ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है? कैन वी राइट एट कांस्टेंट प्रेशर हीट एक्सचेंज इज एंथैल्पी चेंज? क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? हाँ सर। अब यहाँ से यहाँ का एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू यहाँ से यहाँ का एंथैल्पी चेंज। चलो मैं ए से सी की जगह सी से ए कर देता हूँ, इसे इन्वर्ट कर देता हूँ, C2A और एक माइनस साइन रख देता हूँ। तो डेल्टा एच बी सी प्लस डेल्टा एच सी ए इक्वल टू जीरो, B2C C2A। यहाँ से यहाँ का एंथैल्पी चेंज जीरो आ रहा है, आना भी चाहिए, आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो फ्रॉम B to A एंथैल्पी चेंज शुड बी जीरो, आइसोथर्मल प्रोसेस, टेम्परेचर सेम, टेम्परेचर से। तो बी ऑप्शन के दोनों पार्ट मैच कर रहे हैं। क्या इतना समझ में आता है बी? यस सर। यस सर। क्या मैं सी और डी ऑप्शन वापस से तुम्हारे लिए छोड़ूं ताकि तुम थोड़ा सा और इसको समझ सको, मतलब समझ के कर सको? अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि ये। हाँ सर। चलो जेई मेन ऑनलाइन ऑफलाइन, मैं दो क्वेश्चन से ज्यादा आप सॉल्व नहीं करूंगा इसमें, बता दो कौन से दो क्वेश्चन करने हैं। जेई मेन ऑफलाइन ऑनलाइन, ऑनलाइन का 4th। ऑनलाइन की सर उसके थर्ड ऑप्शन में डाउट है सर। जेई मेन ऑनलाइन क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड ऑप्शन, लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था। Consider the reversible expansion of an ideal gas in a closed system at two different temperatures, T1 and T2. The correct graphical depiction of the dependence of work done on the final volume. ठीक है, इसमें हमारे पास फॉर्मूला है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, उसका यूज करना है हमें। nRT ln V2 by V1। सो मैग्नीट्यूड है, प्लस माइनस साइन मैटर नहीं करता, मोड ऑफ वर्क डन है। nRT ln V फाइनल वॉल्यूम, क्लियर, और V1 भी कांस्टेंट है, तो वो जस्ट एक इंटरसेप्ट क्रिएट करेगा। तो इसको हम V के फॉर्म में लिख देते हैं। V1 इनिशियल वॉल्यूम इज जो भी व्हाटएवर इज गिवन, दैट शुड बी कांस्टेंट। T2 T1 पे एक बार आएगा T2, एक बार आएगा T1। अच्छा, T2 ग्रेटर देन T1 दे रखा है। स्लोप ऑफ द कर्व, दिस इज अलोंग y एक्सिस, दिस इज अलोंग x एक्सिस, स्लोप आ रहा है T के प्रोपोर्शनल। क्या इतना हमें समझ में आता है? हाँ सर। यदि स्लोप टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल थे तो ज्यादा टेम्परेचर किसका है? T2 का। तो इसमें ऑप्शन 1 भी मैच करेगा, 2 भी करेगा, 3 भी करेगा, 4 भी करेगा, सारे ही करेंगे। ऐसे देखने जाएंगे तो हम चारों ऑप्शन में स्लोप ज्यादा है, तो स्लोप से तो हम कुछ बता ही नहीं पाएंगे। ग्राफिकल डिपिक्शन ऑफ द डिपेंडेंसी ऑफ वर्क डन ऑन द फाइनल वॉल्यूम। So final volume, अब हमें क्या कंपेयर करना होगा इसमें? सर y इंटरसेप्ट 0 होगा ना? सर क्यों जीरो होगा? वाई फाइनल वॉल्यूम, एक्सक्यूज मी सर। सर इक्वेशन में कुछ भी नहीं है y इंटरसेप्ट, तो y इंटरसेप्ट 0। सर हम उसको उन्होंने बोलो उन्होंने सुनो। फाइनल वॉल्यूम को हमें एक्स इंटरसेप्ट लेने के लिए कहा है ना, तो हम उसको एक एक्स इंटरसेप्ट लेंगे और उसके बाद जो बचेगा उसको हम
वाई इंटरसेप्ट लेंगे तो हमें समझ जाएगा ना, mx प्लस सी, वाई इज इक्वल टू mx प्लस सी, उसके कंपैरिजन कर। y इंटरसेप्ट आएगा नेगेटिव। देखो इसमें होना क्या चाहिए, वर्क डन इज nRT ln v2 y v1, सो v1 को सेपरेट किया हमने, y इक्वल टू mx प्लस c, ये कुछ आ रहा है। क्लियर, कांस्टेंट टेंपरेचर पे ड्रॉ कर रहे हैं, किसी भी एक टेंपरेचर के लिए कांस्टेंट होगा। अब क्वेश्चन ये आता है y इंटरसेप्ट आ रहा है हमारा नेगेटिव, दोनों केस में नेगेटिव आ रहा है y इंटरसेप्ट। क्या एक भी ऑप्शन है जिसमें दोनों केस में y इंटरसेप्ट नेगेटिव दे रखा है? हमारा है माइनस nRT ln v। एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें नेगेटिव y इंटरसेप्ट है, राइट? तो सिर्फ एक ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन ऐसा है जिसमें जीरो स्लोप दे रखा है हमें, सॉरी जीरो y इंटरसेप्ट दे रखा है। तो एक भी केस में नेगेटिव इंटरसेप्ट नहीं था जिसमें दोनों नेगेटिव इंटरसेप्ट हो, सिर्फ फोर्थ ऑप्शन है जिसमें जीरो y इंटरसेप्ट है। इसका मतलब v1 को तुम ले सकते हो 1 लीटर, ये पॉसिबिलिटी रही हो। या तो दोनों के दोनों y इंटरसेप्ट नेगेटिव आए, या फिर दोनों जीरो आ जाएं जब वॉल्यूम v1 हो, 1 लीटर हो जाए। तो ln1 इज जीरो, ये जीरो आ जाएगा, एक ही ऑप्शन मैच होता है। या सो y इंटरसेप्ट को देखकर हमें करना था। इज दैट ओके? हाँ सर। एनी अदर डाउट? सर 7th का डी ऑप्शन, मतलब डी ग्राफ। The combination of plots which does not represent isothermal expansion of an ideal gas does not represent कौन सा ग्राफ बताया तुमने, कौन सा पूछना है इसमें? डी वाला ग्राफ, यू वर्सेस वीएम। ए पर ए भी सर। देखो फोर्थ वाले में क्या हमने ये लिखा है, du by dt for ideal gas is constant pressure, volume is zero. du by dt at constant volume will be zero for an ideal gas. यहां पर इंटरनल एनर्जी वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर पर। बेसिकली इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, ये लॉजिक है। यदि इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है तो इंटरनल एनर्जी कैसे चेंज होगा वॉल्यूम के साथ? इंटरनल एनर्जी को तो कांस्टेंट रखना है हमें आइडियल गैस के लिए। तो फोर्थ ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो बॉयल्स लॉ हो गया, कांस्टेंट टेम्परेचर पीवी इज कांस्टेंट, बॉयल्स लॉ का ग्राफ हो गया वो, राइट? हाँ फर्स्ट सर। करेक्ट है और फोर्थ इनकरेक्ट है, डी ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। चलो कंप्लीट हो गया अभी ये, चले हम आगे। हाँ सर। Just a minute. We'll see now limitation of first law of thermodynamics, then second law of thermodynamics. मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं।
Is it visible? Yes. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कुछ गलत है, बट इट डज नॉट गिव ऑल द इंफॉर्मेशन दैट वी रिक्वायर। क्लियर? चलो अंकित पढ़ना चालू करो लिमिटेशन, फर्स्ट लिमिटेशन से। First law is unable to predict the direction of the change of the feasibility of the process in the particular direction, that is spontaneity. Spontaneity. Continue. It does not give information about the extent to which change takes place. It does not tell us about the direction of the flow of the heat. ठीक है, Spontaneity. basically first adjustment, first law is 100% correct, but it has some limitation in a way it will not give all the information that we required. किस टाइप की इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलती है फर्स्ट लॉ से? फर्स्ट लॉ अनेबल टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द चेंज। मैंने ये बोला जब मैं विंडो ओपन करूंगा तो 50 जूल यदि हीट सिस्टम के अंदर आई, रूम के अंदर आई, तो सिस्टम के लिए +50, सराउंडिंग के लिए -50। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज डेफिनेटली वैलिड, बट फर्स्ट लॉ ने ये प्रेडिक्ट करना नहीं बताया द हीट विल फ्लो फ्रॉम आउटसाइड द from outside into the system or from inside to outside the system. सिस्टम से सराउंडिंग में आएगा, सराउंडिंग से सिस्टम में जाएगा हीट, ये हमें एक्सप्लेन नहीं किया। मतलब किस डायरेक्शन Excuse में me, sir. प्रोसेस होगा, एक मिनट ना, किस डायरेक्शन में प्रोसेस होगा जब हम दो बॉडी को कांटेक्ट में रखते हैं, तो बेसिकली किस बॉडी से किस बॉडी में एनर्जी का फ्लो होगा, और मतलब किस डायरेक्शन में एनर्जी का फ्लो फिजिबल है, किस डायरेक्शन में एनर्जी का फ्लो फिजिबल नहीं है, ये हमें फर्स्ट लॉ में नहीं बताया। सेकंड में फिर ये कहा गया इट डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्सटेंट। एक्सटेंट मतलब यदि कोई भी चेंज हो रहा है तो किस एक्सटेंट तक होगा। जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम में देखा था, कुछ रिएक्शन से इक्विलिब्रियम पे बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली, कहां तक एक्सटेंट होगा अभी तक हमें नहीं पता चला है ना, वो केमिकल इक्विलिब्रियम में पता लगता है किस एक्सटेंट तक रिएक्शन जाएगा, बट थर्मोडायनेमिक्स में वो नहीं पता लगता है। It does not tell us about the direction of flow of heat. Basically, first and third both are similar point. मतलब किस डायरेक्शन में चेंज, the word spontaneous means change which can occur on its own without help of any external agency. बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी के हेल्प से जो चेंजेस खुद से होते हैं उन्हें स्पॉन्टेनियस चेंज कहा जाता है। तो किस डायरेक्शन में चेंज खुद से होगा, किस डायरेक्शन में चेंज खुद से नहीं होगा। डेफिनेटली एक डायरेक्शन में यदि चेंज खुद से हो रहा है तो दूसरे डायरेक्शन में चेंज खुद से नहीं होगा। एक सिंपल सा एग्जांपल लूं, एक तुम्हारा जो नोटबुक है अपने आप उठ के कभी भी ऊपर नहीं जाएगा, क्लियर, बट तुम यदि उसको ऊपर रखोगे और अपना हैंड का फोर्स रिमूव करोगे अपने आप नीचे चला जाएगा। मतलब जहां पे एनर्जी बढ़ेगी वो अपने आप कभी नहीं होगा, जहां एनर्जी कम होगी वो चेंज अपने आप हो जाएगा। क्लियर? हमने एक बॉल को पुश किया, यदि स्लोप है तो वो स्लोप पे बॉल चलते चले जाएगी इनफाइनाइट डिस्टेंस तक, मतलब डाउन द स्लोप जा रहे हैं तो हमने बॉल को अप द स्लोप पुश किया, स्लोप अपवर्ड है, हमने पुश किया, शायद वो 1-2-3 सेंटीमीटर जाएगी और फिर वापस से नीचे आने लगेगी। ऊपर जाना प्रोसेस अपने आप से नहीं होगा, नीचे आने वाला प्रोसेस अपने आप से होगा। दैट इज स्पॉन्टेनियस। क्या समझ में आए फर्स्ट 2-3 पॉइंट्स लिमिटेशन के? Is there any Yes, doubt sir. now? No, sir. Excuse me, sir. बोलो। Who is this? Sir, Nikhil? वो Who is this? Nikhil? बोलो। सर वो जब हम फर्स्ट लॉ यूज करते हैं तो उसमें हम लोग फ्लो ऑफ हीट में Q की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव लेते हैं, तो सर वो डायरेक्शन बताता है ना? फिर से बोलो। नहीं, वो डायरेक्शन नहीं बताता है, वो हमें किसी ने डायरेक्शन बता दिया होता है तो हम साइन लेते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस टू थिंग्स।
हमें ये नहीं बताया था कि डायरेक्शन, हमें तो बोल दिया गया बी से डी पे हीट यदि फ्लो सिस्टम से सराउंडिंग में फ्लो रही तो हमें फिर सिस्टम से सराउंडिंग बोल दिया गया है, तो फिर उसको नेगेटिव लेते हैं, है ना। वो एक ही बात है, तुमने बोला सिस्टम टू सराउंडिंग नेगेटिव, तो डायरेक्शन बताया जा रहा है, ना कि हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, राइट। यस सर, अब क्लियर है। चलो पार्थ आगे पढ़ो। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, spontaneous process, spontaneity, natural process, feasible process, all are same. Part. पार्थ पढ़ो आगे। यश, am I audible or not? Yash, Vidhi, मेरी आवाज आ रही नहीं है? हाँ पढ़ो आगे। Spontaneous process or spontaneity, natural or Feasible. process which can occur on its own. They may require initiation. They may require initiation before they can proceed. Criteria for spontaneity: first, ठीक है। energy. Spontaneity, wait for a minute. Process which can occur on its own without help of any external agency, but yes, it may be possible. In order to start the process, it may require some initiation. हमें एक पेपर को बर्न करना है, जो हम पेपर को बर्न करेंगे वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। एक बार तुम रिएक्शन स्टार्ट करोगे, प्रोसेस इनफाइनाइट टाइम तक चलता चला जाएगा, क्लियर, जब तक कि पूरा पेपर कंबशन नहीं हो जाता है, बर्न नहीं हो जाता है। बट उसे रिक्वायरमेंट होती है किसकी? स्टार्ट करने की, चाहे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो, but they may require initiation in some cases. Is that okay? Yes sir. Criteria for spontaneity, मतलब कोई भी चेंज खुद से कब होगा, खुद से नहीं होगा, एक बहुत नॉर्मल सा क्राइटेरिया है, एनर्जी और इंथैल्पी क्राइटेरिया। एक मार्कर को मुझे ऊपर उठाना है, तो प्रोसेस विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। मार्कर अपने आप कभी ऊपर उठ के नहीं आएगा क्योंकि उसका एनर्जी बढ़ रहा है, बट जैसे ही मैं अपने फोर्स से मूव करूंगा, मार्कर अपने आप नीचे आ जाएगा क्योंकि उसमें उसका एनर्जी इंथैल्पी डिक्रीज हो रहा है। सो एनर्जी क्राइटेरिया मैं इसको बोर्ड पे लिखाता हूँ, तुम यहां तक लिखो एक काम। यू जस्ट नीड टू कॉपी टिल हियर। हो गया कॉपी वहां तक? Yes, sir.
देखो ये डस्टर कभी भी अपने आप ऊपर नहीं आएगा, डेफिनेट है, क्लियर। जब तक मैं इस पे फोर्स नहीं लगाऊंगा ऊपर नहीं आएगा। बट इफ आई रिमूव द फोर्स ऑन दिस डस्टर, इट कैन कम ऑटोमेटिकली फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अपने आप नीचे आएगा। जब ये डस्टर अपनी एनर्जी को डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज इन एनर्जी इज बेसिकली फेवर्स द स्पॉन्टेनिटी। यदि एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो हमेशा चेंज वो स्पॉन्टेनिटी खुद से हो सकता है। स्पॉन्टेनियस मतलब जो खुद से होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस जो खुद से नहीं होगा, राइट। बट हाँ, अब जैसे मैं बताऊं, ये है डस्टर है, ये नीचे जाके अपनी एनर्जी कम कर सकता है, तो खुद से होना चाहिए। बट ये खुद से क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इस प्रोसेस को मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा। इफ आई पुश द डस्टर, इफ आई स्टार्ट द चेंज, एक बार ये चेंज स्टार्ट हो गया, मैंने इसको यहां से जस्ट हटा दिया, अब ये खुद से हो जाएगा चेंज। तो जो स्पॉन्टेनियस चेंज है, जो चेंज खुद से भी होते हैं, दे मे रिक्वायर इनिशिएशन। कुछ चेंज में, कुछ प्रोसेस में इनिशिएट करना होता है, कुछ चेंज में इनिशिएट नहीं भी करना होता है। बट वी हैव सम एक्सेप्शन टू दिस। ऐसा नहीं था कि सिर्फ यही एक क्राइटेरिया था, जिसमें यदि हम बात करें भी कुछ एक्सेप्शन आएंगे जहां पे एनर्जी डिक्रीज हो रही है, स्टिल द चेंज कैन अकर ऑन इट्स ओन। या एनर्जी इंक्रीज हो रही है, वहां पे चेंज खुद से हो रहा है। हम बात करें वेपराइजेशन की, H2O लिक्विड को H2O गैस में कन्वर्ट करो, या लिक्विड का एनर्जी कम होता है, गैस का एनर्जी ज्यादा होता है, गैस इज मोर एनर्जेटिक, स्टिल ये प्रोसेस खुद से होगा। जिस रूम में हमें, उस रूम के फ्लोर पे भी हम पानी डाल देंगे, कुछ टाइम बाद पानी सारा का सारा वेपराइज हो जाएगा। तो एनर्जी बढ़ रही है, फिर भी चेंज खुद से हो रहा है, या इसका डेल्टा H पॉजिटिव, still the change is spontaneous. Some spontaneous changes in which enthalpy is increasing, delta H is greater than 0. First example. Second example, NH4Cl solid can give NH4 plus aqueous plus Cl minus aqueous। यहां पर भी जब ये चेंज होगा, सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हो, यू नीड टू सप्लाई सम एनर्जी, इसके लेटिस एंथैल्पी को ब्रेक करना होता है, क्लियर। और ये चेंज भी अपने आप होगा वाटर में, डेल्टा H इसका भी ग्रेटर देन 0 है। इज दैट ओके? सो देयर आर सम चेंजेस इन व्हिच एनर्जी इज इंक्रीजिंग एंड स्टिल द प्रोसेस, द चेंज, द केमिकल रिएक्शन कैन अकर ऑन इट्स ओन। तो क्वेश्चन आता है, डेफिनेटली सिर्फ अकेला क्राइटेरिया तो ऐसा होगा नहीं जो डिसाइड करेगा कि चेंज स्पॉन्टेनियस है नॉन स्पॉन्टेनियस है। क्या इतना समझ में आ रहा है? अथर्व, चेतना, ध्रुव, गौरव? Yes, sir. Yes, sir. दिस इज नॉट द Yes, ओनली sir. क्राइटेरिया बाय व्हिच वी कैन डिसाइड द चेंज इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। तो जितने भी ऐसे चेंज जो स्पॉन्टेनियस है, जिसमें एंथैल्पी बढ़ रहा था, उसमें हमने एक और ऑब्जर्वेशन लिया। गैस कैन मूव मोर रेंडमली देन लिक्विड, लिक्विड एक्वस कैन मूव मोर रेंडमली देन सॉलिड। इन सारे चेंजेस में जो रेंडमनेस है, जो मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स का, वो बढ़ रहा था। तो वी हैव अनदर क्राइटेरिया, ये एंथैल्पी क्राइटेरिया था। सेकंड होता है एंट्रोपी क्राइटेरिया। अब क्वेश्चन ये होता है एंट्रोपी क्या है? पहले तो हम एंट्रोपी को डिफाइन कर लेते हैं। एंट्रोपी डिनोटेड बाय एस, सर ये वाला It is एक the- बार और बता दीजिए। इट इज द डिग्री of randomness or disorderness. It is the degree of randomness or disorderness of a system. It can also be defined as, it is the number of ways in which molecules of a system can be arranged. देखना, हम फर्स्ट लॉ का एक ड्रॉबैक था, इट कैन नॉट डिसाइड द स्पॉन्टेनिटी ऑफ एनी चेंज। कोई भी चेंज स्पॉन्टेनियस होगा नहीं होगा ये नहीं बता पा रहा था। तो सेकंड लॉ में कुछ और टर्म्स हमने डिफाइन किए। एक हमने देखा कोई भी चेंज स्पॉन्टेनियस कैसे होगा, इफ एनर्जी इज इंक्रीजिंग द चेंज कैन नॉट अकर ऑन इट्स ओन,
if energy is decreasing, change can occur on its own. So इसे हमने बोला enthalpy और energy criteria. Enthalpy is a form of energy, sum of internal energy plus pressure volume energy. If enthalpy of a system is decreasing, then it favors the spontaneity of change. वो spontaneous होने को favor करेगा. But क्या सिर्फ enthalpy एक criteria था जो spontaneity decide कर रहा है? No. There are some changes in which enthalpy is increasing, still the change can occur on it. Delta H, enthalpy of product is more than enthalpy of reactant, फिर भी change खुद से हो रहा है. तो जब ये change खुद से हो रहा है तो basically कुछ और criteria है क्या? Yes. In all these cases हमने देखा randomness, disorderness बढ़ रही है system की, molecules का movement बढ़ रहा है. तो एक नया term define किया entropy. It is a degree of randomness or disorderness of a system. Clear? It is a number of ways in which molecules of a system can be arranged. यदि सारे molecules सेम होंगे, आइडेंटिकल होंगे तो एक ही वे में अरेंज होंगे. अलग अलग होंगे, ज्यादा रैंडमनेस होगी, ज्यादा वेज होंगे अरेंजमेंट. तो एंट्रोपी क्राइटेरिया यहाँ, यदि रैंडमनेस बढ़ेगी तो ये फेवर करता है स्पॉन्टेनिटी को. सेकंड क्राइटेरिया. तो एंट्रोपी पहले डिफाइन किया, मैं एंट्रोपी क्राइटेरिया लिखा देता हूं. इसी के नीचे लिखना है इफ entropy of a system increases during the change or process, then एंट्रोपी क्राइटेरिया. इंथॉल्पी डिक्रीज हो रही तो फेवर कर रहा था, एंट्रोपी बढ़ेगी तो फेवर करेगा स्पॉन्टेनिटी को. एंड बोथ फैक्टर्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. अब क्वेश्चन आता है एक्चुअली प्रोसेस स्पॉन्टेनियस किससे पता लगेगा? दो फैक्टर आ गए. हम एक थर्ड टर्म डिफाइन करेंगे, गिव्स फ्री एनर्जी, व्हिच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एंथैल्पी एंड एंट्रोपी क्राइटेरिया. दोनों को मैथमेटिकली मर्ज करके एक रिलेशन में रख देंगे और हम बोलेंगे ओवरऑल क्राइटेरिया विल बी डिसाइडेड बाय दैट क्वांटिटी, थर्ड क्वांटिटी, व्हिच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड क्वांटिटी. क्लियर है केशवी, लक्षिका, अजिंक्य, अमोघ? रिस्पॉन्ड करो, किसी का भी Yes, sir. क्लियर है सर. सर एंट्रोपी एक बार बता दीजिए ना फिर से. एंट्रोपी तो अभी जस्ट स्टार्ट ही किया है. एंट्रोपी का सिर्फ टर्म मैंने डिफाइन किया है. इट इज अ डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ अ सिस्टम. किसी भी सिस्टम में कितनी रैंडमनेस है, कितना डिसऑर्डरनेस है, वो टर्म को हम बोलते हैं एंट्रोपी. इट इज आल्सो डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ वेज इन व्हिच मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सिस्टम कैन बी अरेंज्ड. जिसमें ज्यादा वेज होंगे अरेंजमेंट के, मतलब उतना ज्यादा रैंडमनेस होगी. और हमने ये ऑब्जर्व किया जब एनर्जी सिस्टम की बढ़ेगी तो वो स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, एनर्जी सिस्टम की कम होगी तो स्पॉन्टेनियस होगा. बट कुछ चेंजेस ऐसे थे जिसमें एनर्जी बढ़ रही है, स्टिल द चेंजेस इज स्पॉन्टेनियस. उन सारे फैक्टर में एंट्रोपी बढ़ रही थी, रैंडमनेस बढ़ रही. तो फिर हमने एंट्रोपी क्राइटेरिया लिखा. इफ एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीजिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस और चेंज, देन इट फेवर्स द स्पॉन्टेनिटी. यदि किसी की भी रैंडमनेस बढ़ेगी तो चेंज खुद से होने की टेंडेंसी रखेगा. एक एग्जांपल, इसका मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं. हमने एक बॉटल है परफ्यूम की बॉटल को ओपन किया. क्लियर? जैसे परफ्यूम की बॉटल को ओपन किया, पूरे रूम में परफ्यूम की स्मेल आने लगती. बॉटल को ओपन करते से
क्योंकि उसमें जो गैसेस मॉलिक्यूल्स थे, जो परफ्यूम के वेपर्स थे, वो वेपर्स अब पूरे रूम में मूव करने लगेंगे एंड द चेंज इज स्पॉन्टेनियस, चेंज कैन अकर ऑन इट्स ओन। पहले जो बॉटल में लिमिटेड मूवमेंट था, अब पूरे रूम में रैंडमनेस होगी। तो रैंडमनेस बढ़ रही है, द चेंज कैन अकर ऑन इट्स ओन। क्लियर? पानी लिया, पानी को फ्लोर पे डालो, पूरा फैल जाएगा अपने आप, तुम्हें फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसकी रैंडमनेस उस केस में बढ़ रही है फैलने में। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. चलो एंट्रोपी को लेके कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है स्टेट फंक्शन होने के साथ साथ। क्लियर? चेंज इन एंट्रोपी, entropy of the final state minus entropy of the initial state for a process। यदि हम केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे, change in entropy for a reaction, entropy of product minus entropy of reactant for a reaction। सो बेसिकली स्टेट फंक्शन है, इसलिए सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। एंट्रोपी ऑफ सॉलिड इज लेस देन एंट्रोपी ऑफ लिक्विड विच इज मच लेस देन, दो साइन है मतलब बहुत छोटे होते हैं, इन कंपैरिजन टू गैस। गैस का एंट्रोपी बहुत ज्यादा होता है सॉलिड लिक्विड के से रिलेट करेंगे तो, गैस पिक्चर में आएगा तो सॉलिड लिक्विड को इग्नोर कर देंगे। Entropy of gas at high pressure is less than entropy of gas at low pressure। प्रेशराइज करोगे गैस को, गैस मॉलिक्यूल पास में आएंगे, ज्यादा बेटर वे में अरेंज होंगे, रेंडमनेस कम होगी। एक्सपैंड करोगे, प्रेशर कम रखोगे, ज्यादा मूवमेंट होगा, ज्यादा रेंडमनेस होगी। तो गैस का लो प्रेशर पे एंट्रोपी ज्यादा, हाई प्रेशर पे कम। एक टर्म होता है डेल्टा एस टोटल और डेल्टा एस यूनिवर्स। यूनिवर्स मतलब सिस्टम और सराउंडिंग। फिफ्थ पॉइंट, कहीं भी स्टैंडर्ड दिया है नॉट आ जाएगा, एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 180 एम। सही, सार्थक, समझ में आ रहा है? प्रणव? यस सर। सर एक बार थर्ड पॉइंट बताइए ना, वो प्रेशर वाला। ये देखो प्रेशर गैस है, ऐसे उसको इंटरप्रेट करो, गैस को प्रेशराइज करोगे, बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर दिया, क्या लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा? हाँ, जैसे से प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो एंट्रोपी क्या होगा? कम। एंट्रोपी कम होता जाएगा। तो यदि पहले गैस है, लो प्रेशर पे प्रेशराइज करोगे, हाई प्रेशर पे एंट्रोपी कम होगा, और प्रेशराइज किया लिक्विड बन गया, एंट्रोपी और कम हो गया। इज इट ओके? हाँ सर। चलो ठीक है, आज यहीं पे खत्म करते हैं। सर अटेंडेंस। अटेंडेंस ले रहा हूं मैं, वेयर इज अटेंडेंस पेज? मिल गया।
JA. पेन कहाँ गया? Today is 23rd. आदित्य, Present, sir. अजिंक्य, Present, sir. अमोघ, Present, sir. अनिकेत, प्रेजेंट सर। अंकित, Present, sir. अथर्व, चेतना, Present, ध्रुव, गौरव, Present, sir. Present, sir. हर्ष, केशवी, लक्षिका, नयन, Present, sir. Present, sir. Present, sir. निशांत, पार्थ, Present, sir. प्रणव, Present, sir. सई, प्रेजेंट सर। साइमा, सार्थक, Present, sir. विधि, Present, sir. यश, and Shiva. Present, sir. Present, sir. Present, sir. All are present today. 25 students. ठीक है, you may leave now.